Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. For those who are new to the channel, my name is Mrs. Renu Bansal and I am a PGT who is involved in active teaching of classes 10th, 11th and 12th. I have 17 years of teaching experience and love to share my knowledge through a creative medium so that it may benefit the maximum. For a preview of the chapter, I advise you all to take a look at the description box, and today we are going to study the poem How to Tell Wild Animals, written by Carolyn Wells. Carolyn Wells was born on 18 June 1862 in New Jersey, United States, and she died on 26 March 1942 when she was 79 years of age. She was a prolific American author, poet, novelist, and is remembered largely for her popular mysteries, children's books, and humorous verse. Her first book, At the Sign of the Sphinx, written in 1896, was a collection of literary charades. Her next publications were The Jingle Book and The Story of Betty, written in 1899, followed by a book of verse entitled Idylls, written in 1900, and after 1900 Wells wrote numerous novels and collections of poetry. Jumping right into the poem, let us first discuss the title of the poem, whether it is appropriate or not. Now, the entire poem is an amusing description of different wild animals which focuses on how to distinguish one animal from the other. अगर हमें इस टाइटल को समझना है तो हमें पोएम को समझना होगा. पोएम जो है ये एक अम्यूजिंग डिस्क्रिप्शन है, एक मज़ेदार डिस्क्रिप्शन है ऑफ द डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स. और इस पोएम में फोकस किया गया है कि हम एक एनिमल को दूसरे एनिमल से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. Now all the animals described have a distinct description and characteristic of their own. जितने भी एनिमल्स इस पोएम में डिस्क्राइब किए गए हैं, दैट इज 7 एनिमल्स, इनकी अपनी एक डिस्टिंक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. एंड दिस इज़ व्हेन वी कम टू नो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, then we see that the title is completely appropriate. The poem is revolving around the dangerous ways to identify the wild animals. खतरनाक तरीके जिनसे हम एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये पोएम उसके इर्द गिर्द घूम रही है. जो हमारी पोएट है, शी ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर इन अ ह्यूमरस वे. एक मजाकिया तौर पर, एक हंसी मजाक के तरीके से वो एक सीरियस मैटर को डिस्कस करती है, जिससे हमें एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक भी पता चलती है और उसके साथ साथ हमारे चेहरे पे एक स्माइल भी आ जाती है. एंड देन फाइनली द पोएट सजेस्ट्स दैट इट वुड बी वेरी रिस्की टू बी इन सच क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दीज वाइल्ड बीस्ट. हर स्टैंजा में वो हमें ये भी बताती है कि अगर हम इन ख़तरनाक जानवरों के क्लोज होंगे, उनके नज़दीक होंगे, तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है. We will now read the poem and try and understand it. So the first stanza is, if ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. So this first stanza is dealing with the identification of the Asian lion. हमें Asian lion की डिस्क्रिप्शन बताता है. तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये ह्यूज और येलोइश ब्राउन कलर्ड बीस्ट है. येलोइश ब्राउन मतलब गोल्डन ब्राउन कलर का बीस्ट है और बहुत ह्यूज है, बड़ा है. अब ये पाया कहाँ जाता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज. और ये हाउ विल यू मीट दिस एनिमल? तो इट विल कम अपॉन अ पर्सन क्वाइट सडनली. अचानक से ही ये आपके नज़दीक आएगा और ये आपको मारेगा कैसे? दैट इज़ इट विल फ्राइटन द पर्सन टू डेथ बाय हिज लाउड रोर.
उसकी जो घुर्राने की आवाज़ है वो इतनी लाउड है कि उसको सुनकर ही इंसान की डेथ हो जाएगी। So after discussing the death by an Asian lion, we now move towards stanza 2, in which the poet says, or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to the sun. सो हमारे को इस सेकेंड स्टैंजा में डिस्क्राइब किया गया है द बंगाल टाइगर। और बंगाल टाइगर की आइडेंटिफिकेशन क्या है? इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द डिस्टिंक्टिव ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन। इसकी मतलब इसकी येलो गोल्डनिश येलो स्किन होती है जिसके ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, बड़े डिस्टिंक्टिव स्ट्राइप्स हैं। So when you see these stripes, you know that you are seeing the Bengal tiger. अब इस टाइगर को नोबल बीस्ट की तरह डिस्क्राइब किया गया है। नोबल का क्या मतलब है? नोबल स्टैंड्स फॉर रॉयल। रॉयल मतलब जंगल का राजा। एंड यस, द टाइगर इज़ द किंग ऑफ द जंगल। बट नोबल में आयरनी भी यूज्ड है। आयरनी का मतलब है हम कहते कुछ हैं बट मीन उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे नोबल में आयरनी क्यों है? बिकॉज द टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल, बड़ा खतरनाक जानवर है, और जैसे ही वो आपको देखेगा ही विल हंट एंड ईट अ पर्सन अप। वो इमीडिएटली उसको खा जाएगा, आपको सोचने का टाइम भी नहीं देगा। सो देयरफॉर द टाइगर इज़ अ वेरी डेंजरस एनिमल। द थर्ड स्टैंजा सेज, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. So now the next animal that the poet is discussing is the leopard. Leopard के identification क्या होते हैं? It has dark blackish spots. पेपर की तरह ये स्पॉट्स नज़र आते हैं ऑन येलो कलर्ड बॉडी। जो उसके बॉडी का बेस कलर है दैट इज़ येलो, और उसके ऊपर ये ब्लैकिश कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं। और ऐसे लगता है जैसे आपने पेपर मतलब काली मिर्च, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है, छिड़क दी है, तो वो काली मिर्च येलो बैकग्राउंड के ऊपर काली मिर्च जैसा उसका जो स्किन है वो नज़र आता है। नाउ व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ द लेपर्ड? It is to leap again and again on the person it encounters. लेपर्ड आपको देख के छोड़ेगा नहीं, आपके ऊपर कूदता जाएगा, लीप करता जाएगा जब तक आप फाइनली मर नहीं जाते। एंड फाइनली द पोएट सेज, हाउ विल यू डाई बाय द लेपर्ड? इट इज़ यूजलेस फॉर द पर्सन अंडर अटैक टू रोर विथ पेन, बिकॉज द लेपर्ड विल नॉट स्पेयर हिम एंड विल कंटिन्यू विद इट्स अटैक। जो बंदा लेपर्ड के अटैक से घिर जाए उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा दर्द से कराने का, बिकॉज लेपर्ड बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा, वो आपके ऊपर लीप करता जाएगा टिल फाइनली यू डाई। इट विल कंटिन्यू विद इट्स अटैक। इन स्टैंजा 4 द पोएट सेज, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बेयर. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. So in this fourth stanza, we can see that it is the identification of the bear. Bear मतलब भालू। भालू को हम आइडेंटिफाई करते हैं। भालू कैसे आपसे मिलेगा? By giving you a tight friendly hug. बहुत ज़ोर से आपको गले लगा लेगा। ये गला लगाना एक्चुअली करेस नहीं है, आपको प्यार नहीं कर रहा है, ये बियर की स्ट्रैटेजी होती है टू किल यू। इट ग्रास्प्स यू सो टाइटली दैट यू चोक टू डेथ। वो आपको इतनी ज़ोर से पकड़ लेगा, जप्फी डाल लेगा, हग करेगा कि आपको सांस नहीं आएगी एंड यू मे डाई। और बियर से हम मिलेंगे कहाँ पे? वी मे मीट द बियर व्हेन वी आर मूविंग अराउंड वंस कोर्टयार्ड। बियर की अक्सर आदत होती है रात को फूड स्कैवेंज करने के लिए डस्टबिन्स में से वो हमारे कोर्टयार्ड में आ जाते हैं, और शाम को टहलते हुए पॉसिबिलिटी है कि वी में मीट द बियर।
नाउ पोएट फर्दर गोज कि अगर फर्स्ट टाइम हग करने पर विक्टिम बच जाता है, इफ द विक्टिम इज स्टिल अलाइव, द बियर विल गिव अनदर हग विच वुड डेफिनेटली चोक वन टू डेथ। मतलब बियर भी आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। पहला हग पे अगर आप मरते नहीं हो तो वो आपको दोबारा से हग देगा जिसमें आप डेफिनेटली यू विल चोक मतलब सांस आनी बंद हो जाएगी एंड यू विल डाई। Now the poet humorously uses the word caress because इसमें humor क्या है? Caress is supposed to mean a loving touch, but यहाँ पे caress का मतलब है the slap or swat of the bear on its victim। ज़ोर से bear जो है आपको मारता है और उसकी मार इतनी ज़ोर से लगती है कि one may die। Now usage of caress is also ironical as the word caress means a loving touch, I've already told you, but this caress of the bear can prove to be fatal। आपकी जान जा सकती है, इसलिए यहाँ पर irony भी है। In stanza 5 we are going to read about the hyena and the crocodile. It starts with, though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। तो अब ये दोनों बीस को डिस्टिंग्विश करने के लिए पोएट कहता है अ नोवाइस। नोवाइस का मतलब होता है एक अनजान बंदी, पहली बार जो इन एनिमल्स को देखेगा, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो नॉन प्लस हो जाएगा। नॉन प्लस हो जाएगा का मतलब है ही मे बिकम कन्फ्यूज्ड एंड पजल्ड। उसको उसको कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। एंड इसीलिए वो बोलते हैं कि उनके लिए डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करना इतना आसान नहीं होएगा। तो पोएट बड़े ह्यूमरस कॉन्ट्रास्ट से हमारे को बताता है बिहेवियर के थ्रू कि हम हाइना और क्रोकोडाइल में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो वो कहता है कि हाइना हमेशा स्माइल करता है, उसकी जो स्माइल होती है वो विक्टिम को स्वॉलो करने से पहले की स्माइल होती है। और जो क्रोकोडाइल होता है इट विल ऑलवेज शेड टीयर्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे। तो क्रोकोडाइल के आंसू क्रोकोडाइल प्रिटेंड करता है एज इफ इट इज़ वेरी सैड व्हेन इट इज़ ईटिंग यू अप। और कैरोलिन वेल्स हमें वार्न करती है, रीडर्स को ये भी वार्न करती है that one should not wait for a hyena to laugh or a crocodile to weep। हमें उनका हंसने के लिए या रोने के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइना जो है वो कभी भी खुशी से हंसती नहीं है। उसकी जो स्माइल होती है वो बड़ी कनिंग स्माइल होती है बिकॉज इट इज़ अबाउट टू ईट यू अप। और जो क्रोकोडाइल के टीयर्स होते हैं वो कभी भी जेन्युइन नहीं होते हैं। इट इज़ वेरी हैप्पी दैट इट इज़ ईटिंग यू अप। तो उसके जो आंसू हैं वो झूठे होते हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं होती। Finally, in the last stanza, that is stanza 6, the poet says, the true chameleon is small, a lizard sort of things. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see। तो यहाँ पर वो आइडेंटिफाई कर रहा है एक कमिलियन को। कमिलियन मतलब गिरगिट। गिरगिट की आदत क्या होती है? रंग बदलने के लिए। तो पहले वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है बिटवीन अ कमिलियन एंड अ लिजर्ड। बोलते हैं कि वो लिजर्ड की तरह नज़र तो आता है बट इट हैज़ नो ईयर्स और विंग्स। उसके ना तो कान होते हैं ना पंख होते हैं। राइट? अब गिरगिट की खासियत क्या है? दैट इट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज कलर्स अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। वो अपने वातावरण के हिसाब से अपने जो रंग है वो ब्लेंड इन कर जाता है, चेंज कर जाता है। नाउ बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग, जो इंसान होता है ही और शी कैन नॉट ईजिली ट्रेस इट। राइट? वो ट्री पे बैठा होगा तो ब्रांच और लीव्स की तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो इंसान उसको आसानी से नहीं देख पाता है। नाउ यहाँ पर इस चीज़ में एक पैराडॉक्स है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। पैराडॉक्स मतलब हम बोलते कुछ हैं बट मीन अगेन इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट इज़ द ट्रुथ। तो
तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री देर इज़ अ कमिलियन सिटिंग ऑन इट, बट मतलब हमें लगता है ट्री पे कुछ नहीं है, बट अक्सर उस ट्री पे कमिलियन बैठा हुआ होता है, और वी आर नॉट एबल टू लोकेट द कमिलियन बिकॉज इट हाइड्स इट्स प्रेजेंस बाय मर्जिंग इटसेल्फ विद इट्स सराउंडिंग्स। वो अपने आप को ब्लेंड इन कर लेता है सराउंडिंग्स के साथ, इसीलिए हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। So this is the paradox of this stanza. So with this we come to the end of the poem, but there are certain important things we need to discuss, like poetic devices, rhyming scheme and the other things. So starting with the poetic devices, there are 3 poetic devices used here. First is alliteration, second is repetition and third is inversion. Alliteration जो होता है that is repetition of the same sound. बच्चे अक्सर अल्फ़ाबेट की रेपिटेशन को अलिट्रेशन समझते हैं. इट इज़ नॉट द रेपिटेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट बट द साउंड ऑफ द अल्फ़ाबेट. ओवर हियर अलिट्रेशन इज इन द वर्ड्स रोमिंग एंड राउंड. द र साउंड इज रिपीटेड. अगेन अलिट्रेशन इज देयर इन द लाइन हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड. अब आप हु में देखोगे W से शुरू होता है बट द साउंड इज ह, एंड ह इज द सेम एज her in hugs and her in hard. So there is alliteration here. The third alliteration is in the line a novice might nonplus. It is a repetition of the sound no. And the last repetition is in the line if when you are walking round your yard. The your sound in your and your yard. तो यहाँ पे your sound repeat हो रहा है. Now the second literary device is repetition. एलिट्रेशन में साउंड रिपीट हो रहा है तो रेपिटेशन में पूरे का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है. सो देर इज रेपिटेशन इन द लाइन he'll only leap and leap again. तो the word leap is being repeated and therefore repetition is there. और ये हमें शो करता है, हमें दिखाता है कि कैसे एक लेपर्ड अपने प्रे के ऊपर लीप करता है. सेकेंड रेपिटेशन इज इन द लाइन who hugs you very very hard. Over here the word very has been repeated to stress upon the tightness of the hug of a bear which is fatal. ये हमें बताता है कि बियर हमें कितनी ज़ोर से हग करता है और फाइनली ये ज़ोर का जो हग है ये हमारे लिए फेटल साबित होता है, विटाइल. नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज इन्वर्जन. इन्वर्जन का मतलब होता है व्हेन द वर्ड्स आर, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा चेंज कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस. नॉर्मल लाइन होनी चाहिए थी इफ़ ही शुड एडवांस टूवर्ड्स यू, बट पोएटिक इफेक्ट के लिए पोएट ने लिखा है शुड टू यू एडवांस, टू यू एडवांस. तो यहाँ पे हम कहते हैं इन्वर्जन है, द वर्ड्स हैव बीन इन्वर्टेड. सेकेंड इन्वर्जन है इन द लाइन दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. इसका बेसिक सीक्वेंस होना चाहिए था, स्ट्रक्चर होना चाहिए था विल हेल्प यू लर्न टू डिसर्न द बंगाल टाइगर, बट द बंगाल टाइगर टू डिसर्न में हमें इन्वर्जन नज़र आता है. एंड फाइनली इन द लाइन इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू. तो यहाँ पे लाइन होनी चाहिए थी इफ़ यू व्यू अ बीस्ट. तो अगेन वी से दैट देयर इज एन इन्वर्जन. Okay, now coming to the rhyme scheme. The rhyme scheme of the entire poem is A B A B C C. That is हर stanza की यही rhyme scheme है. It's a uniform rhyme scheme. जब rhyme scheme uniform होती है तब उसको बोला जाता है पूरी poem की ही rhyme scheme है. Otherwise rhyme schemes differs according to the stanza. Now the next important thing in this chapter is the poetic license which the poet has taken. Poetic license का मतलब होता है the freedom to depart from the facts of a matter or from the conventional rules of language when speaking or writing in order to create an effect. जो आम तौर पे हम rules follow करते हैं बोलने के, लिखने के, तो उन रूल्स से पोएट थोड़ा हट जाता है. क्यों हटता है? बिकॉज उसको एक पोएटिक इफ़ेक्ट क्रिएट करना है. सो दैट इज़ नोन एज पोएटिक लाइसेंस. तो यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ पोएटिक लाइसेंस इज़ द वर्ड लेप्ट, LEPT, एज सून एज इट हैज़ लेप्ट ऑन यू.
तो ये लेफ्ट के जो एक्चुअल स्पेलिंग्स हैं वो उनका होना चाहिए था LEAPT, बट टू क्रिएट अ म्यूज़िकल इफ़ेक्ट पोएट ने उसको शॉर्टन करके लेफ्ट कर दिया है। और सेकेंड लाइन में ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन द वर्ड लीप LEAP को उसने शॉर्टन करके लेप कर दिया है, उसके स्पेलिंग्स चेंज किए हैं। अब ऐसा उसने क्यों किया है? बिकॉज LEPT लेफ्ट एंड LEP लेप, बोथ ऑफ देम ब्लेंड बेटर विद द वर्ड लेपर्ड, एक उसके साथ कनेक्शन बनाता है, इसीलिए उसने पोएट ने ये लाइसेंस, ये फ्रीडम लिया है टू चेंज द स्पेलिंग्स। नेक्स्ट लाइन में है, मतलब नेक्स्ट स्टैंजा में है, इफ़ ही रोज एट यू एज यू आर डाइंग यू नो इट इज़ द एशियन लाइन। यहाँ पे डाइन के स्पेलिंग्स जो हैं उनको जी हटाकर इट इज़ ओनली डाइन, और ये उसने क्यों किया है? टू क्रिएट अ राइम विद द वर्ड लायन, दोनों के बीच में राइम क्रिएट करने के लिए शी हैज़ चेंज द स्पेलिंग्स। लास्ट जो लाइन है जिसमें हमारे को पोइटिक लाइसेंस दिखता है, दैट इज़ द लाइन अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, द एक्चुअल वर्ड इज़ नॉन प्लस्ड, बट उसको 10 के साथ राइम करने के लिए पोएट ने ED को कट कर दिया है और उसको नॉन प्लस बना दिया है। So with this we come to the end of the video. I hope that you liked it and would be encouraged to share it with your friends and classmates, and if you are a teacher with your students, please वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज़ इससे मेरी YouTube फैमिली जो है वो ग्रो करती है और मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलता है। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना, बिकॉज़ जो मेरी फ्यूचर वीडियोस आएंगी तो उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, for liking my video, and I hope you liked it, you liked my presentation. Thank you so much and happy studying to all of you.